Hello learners, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is your trainer Aishwarya Seth and a very warm welcome to all of you on India's first social educational platform where India is learning quality education absolutely free of cost. In this revolutionary and sensational YouTube channel, we are providing complete coachings of various competitive exams 100% free of cost. We are preparing the students from all over India regarding different entrance exams like UGC NET, CTET, PTET, KVS, NVS, Master Cadre, NTT, ETT, BEd, MEd and all other teaching exams all over India. So this is our mission of this channel, to impart quality education at zero cost. So students, no need to go for any costly online offline classes, no need to purchase any kind of expensive study material, books, notes, etc. All you need is to subscribe this channel, because we are providing you each and everything here only. I heartily welcome and want to say a big thank you to all the subscribers for their motivational comments, likings, sharings and flourishing our channel day by day. So those who haven't subscribed this channel yet, please subscribe it, because for winning the exam battle, because we are here to help you out in fulfilling your dreams. This channel is a new, as I started it on 1st April 2020. Even then it is very fast growing channel. Presently we are uploading one video of UGC NET and one video of CTET, PTET, NVS, KVS daily, and giving you complete coachings in a sequential manner. So please do not miss any kind of video, because each and every video is essential for cracking the exam. So the topic of ICT, that is Information and Communication Technology, is going on from the last week, which is the 8th unit of UGC paper 1, in which today I am going to teach you the internet basics under ICT, and its part 1 will be discussed in this video and part 2 I will cover tomorrow. So let's start with the presentation. The basics of internet part 1. So बेसिक्स ऑफ इंटरनेट आज ही हमने स्टार्ट किया है ये वाला टॉपिक, ठीक है जी। इससे पहले जो उस पहले टॉपिक्स है वो सारे मैं करवा चुकी हूँ, बिकॉज एक डेढ़ हफ्ते से जो है हम आईसीटी को ही शुरू किए हुए हैं और आईसीटी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट क्या है। Internet is a massive network of networks and networking infrastructure. It connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they are both connected to the internet. क्या है इंटरनेट? बेसिकली दो वर्ड से फॉर्म हुआ है इंटरनेट, इंटरकनेक्शन प्लस नेटवर्क। जब दो वर्ड्स को हम कंबाइन कर देते हैं, इंटरकनेक्शन प्लस नेटवर्क को कंबाइन कर देते हैं, तो इंटरनेट है। और इंटरनेट आजकल आई थिंक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इंटरनेट ना यूज़ करता हो। हाँ, यूसेज थोड़ी या ज़्यादा हो सकती है, कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, कोई थोड़े लेवल पे यूज़ करता है, लेकिन यूज़ हर कोई कर रहा है, ठीक है जी। सो इट इज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स विच फॉर्म एंड एक्ट्स एज अ सिंगल ह्यूज नेटवर्क्स फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा एंड मैसेजेस अक्रॉस डिस्टेंसेज विच कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द सेम ऑफिस टू एनीवेयर इन द होल वर्ल्ड। सो इंटरनेट क्या है? बिल्कुल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है और ये कनेक्शन है वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। सो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। क्वेश्चन जो है आज के पूरी वीडियो में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है किसी भी सेट में, यूजीसी पेपर 1 में, इसकी इंट्रोडक्शन में से इंटरनेट बेसिक्स में क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसकी हिस्ट्री पे भी आया हुआ बहुत बार, ठीक है जी। इंटरनेट किसने शुरू किया और वो कैसे वर्क करता है, सब कुछ आया हुआ है, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनिएगा। ब्रीफ हिस्ट्री। ARPA, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये जो एजेंसी है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसने इंटरनेट की शुरुआत की थी। 1969 जनवरी 2 स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क। इसने एक एक्सपेरिमेंटल जो है एक नेटवर्क क्रिएट किया था 1969 जनवरी 2 को। कंसेप्ट क्या था? नो सर्वर बट इक्वल इंपॉर्टेंस पार्टिसिपेशन टू एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क, ठीक है जी। कोई सर्वर नहीं है, कोई हब नहीं है, कोई मेन कंप्यूटर नहीं है, बट जितनी भी नोड्स हैं नेटवर्क के साथ वो सारे आपस में कनेक्टेड है। नोड्स मतलब डिफरेंट कंप्यूटर्स इक्वल स्टेटस के, ठीक है। इवन इफ 1 or 2 नोड डिस्ट्रॉयड दैट विल नॉट इफेक्ट दी नेटवर्क। तो इनका कंसेप्ट था कोई भी एक नोड खराब हो जाए, एक कंप्यूटर खराब हो जाए, तो नेटवर्क के ऊपर जो है उसका असर ना हो। तो 1982 में जो है इंटरनेट स्टार्ट हुआ एक्चुअली,
ठीक है जी, थोड़ी सी फंक्शनिंग उसकी 1982, ये ज़रूर याद रखिएगा, कई बार इसकी हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ जाता है। 1982 में स्टार्ट हुआ। 1986 में फर्स्ट फ्री नेट क्रिएटेड इन केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी। फ्री नेट, ठीक है जी, ये इसकी ही एक डोमेन है इंटरनेट की। फर्स्ट फ्री नेट कब क्रिएट हुआ? 1986 में। 1991 में यूएस गवर्नमेंट अलाउड बिजनेसेस एजेंसीज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। 1991 में क्या है, ये कमर्शलाइज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ज्वाइन होने का मौका मिला, ठीक है जी। एंड नाउ ऑल द पीपल कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड इम्प्रूव देयर लाइफ एंड क्वालिटी वर्क। तो अब क्या है, आज तो ये सिनेरियो है कि बच्चे से लेकर बूढ़ा कोई भी पर्सन, ठीक है जी, चाहे वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, कुछ भी है, कोई इंडस्ट्री है, एनीथिंग, एनी पर्सन आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। द इंटरनेट सपोर्ट वेरियस एस्पेक्ट्स इन आर लाइफ, ठीक है जी। तो अब इंटरनेट, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। विंटन सर्फ, नाम सुन लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। विंटन सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है, जिसने इंटरनेट की खोज की थी। विंटन सर्फ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। को डिजाइनर ऑफ द टीसीपी आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, और ये को डिजाइनर या को फाउंडर भी रहा है किसका? टीसीपी आईपी नेटवर्किंग का। टीसीपी आईपी नेटवर्किंग होती है जिस प्रोटोकॉल से इंटरनेट जो है, आप सारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेट जुड़ा हुआ है, किस प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? टीसीपी आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो उसका भी एक को फाउंडर रह चुका है। तो कौन है फादर इंटरनेट का? यस, विंटन सर्फ, ठीक है जी। और कंप्यूटर्स का फादर कौन है? जिसने कंप्यूटर बनाया था? चार्ल्स बेबेज, ठीक है जी। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का फादर है। सो इंटरनेट में जो डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस हैं, गैजेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, किस तरह से कनेक्टेड हैं उसकी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इंटरनेट के लिए www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा वेब? वर्ल्ड वाइड वेब। ये चाहिए कनेक्शन के लिए, ठीक है जी। ये ऐसा वेब है, ऐसा जाल है जिसको हम एक, जैसे इट्स अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस वाया द इंटरनेट। जितने भी हाइपर मीडिया हैं, मल्टीमीडियाज हैं, इंटरनेट कनेक्शंस हैं, सब के सब एक वेब के द्वारा कनेक्टेड हैं, जाल के द्वारा कनेक्टेड है। और उस जाल जो इंटेग्रल पार्ट है इंटरनेट का, उसको क्या बोलते हैं? www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है जी। हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद रेफरेंस टू अदर टेक्स्ट दैट द रीडर कैन इमीडिएटली एक्सेस, यूजुअली बाय अ माउस क्लिक और की प्रेस सीक्वेंस। हाइपर टेक्स्ट क्या है? जो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, डाटा प्रोसेस करके भेजते हैं। जो डाटा हम रिसीव करते हैं, जो डाटा हम भेजते हैं, उसको हम फेच कैसे कर सकते हैं? किस इंटरफेस से? हाइपर टेक्स्ट की टेक्नोलॉजी से, ठीक है जी। Hypermedia is used as a logical extension of the term hypertext, in which graphics, audios, videos, plain text, and hyperlinks intertwine to create a generally non-linear medium of information. और सबसे मेन बात है यहाँ पे कि www ये किसने खोजा था? www किसने बनाया था? ये टर्म किसने दी थी? ये दी थी टिम बर्न्स-ली ने। क्रिएटर कौन है www का? वर्ल्ड वाइड वेब का क्रिएटर कौन है? टिम बर्न्स-ली। कब किया था क्रिएट? 1989 ने। ये मेन पॉइंट्स आपको हिस्ट्री के बता रही हूँ मैं, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट का कौन है? विंसन, अभी मैंने क्या बताया, इंटरनेट का फादर क्या है? विंटन सर्फ, ठीक है जी। और www का फादर कौन है? जिसने ये डिज़ाइन किया, ये वाला जाल डिज़ाइन किया, दैट इज टिम बर्न्स-ली, 1989 में। Tim Berners-Lee is the father of www, invented www while working at CERN, the European Particle Physics Laboratory। यहाँ पे उसने जो है इसकी इन्वेंशन की थी, ठीक है जी। सो डिफरेंस क्या है वेब का और इंटरनेट का? मतलब www और इंटरनेट का आपस में डिफरेंस क्या है? इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं जितनी भी आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ, बिल्कुल क्रक्स लेके आती हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आती हूँ जो पेपर की टर्मिनोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको ध्यान से पढ़िए। इंटरनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क से, तो हमें सबको पता है, इसको बार बार समझाने की ज़रूरत तो है नहीं है। लेकिन www क्या है? इट इज़ द मीन्स वी यूज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑल ओवर इंटरनेट। ये एक साधन है, ये एक जाल है जिससे हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। www ना हो तो इंटरनेट भी वर्क नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चलो हम देखते हैं, एक कंप्यूटर है,
ठीक है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसके उसके अंदर विंडोज़ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, नहीं कर सकता। इन द सेम वे इंटरनेट तो है लेकिन उसका वेब नहीं है, www नहीं है, तो इंटरनेट क्या है, कुछ भी नहीं है, वो वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस, ठीक है जी। एंड ये क्या है कि जो www है ये डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से चलता है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन, जो इंटरनेट को वर्क करने में या इंटरनेट में जो हम डाटा भेजते हैं, डाटा पैकेट्स भेजते हैं, उनको कंट्रोल करता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, और उनको जो है जिस डेस्टिनेशन में हमने भेजना है उसी डेस्टिनेशन पे सही टाइम पे पहुंचाता है। कि इंटरनेट की सारा का सारा काम किसके रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू होता है, वो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, वेब पेज क्या है। वेब पेज सबको पता है, इट्स अ डॉक्यूमेंट और रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सुटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब एंड कैन बी एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर एंड डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर और द मोबाइल डिवाइस। यहाँ पे क्या है, वेब पेज क्या है, जो जैसे हम कोई भी आप कह सकते हो साइट खोलते हैं या वेब पे जाके कुछ भी खोलते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, उसको खोलने की कोशिश करते हैं, और जो खुलता है वो वेब पेज है। क्या खुलता है, जो हम सर्च कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन जिससे डिस्प्ले होती है वो क्या है, कौन सा पेज है, वेब पेज, ठीक है जी। सो यहाँ पे HTML जो फॉर्मेट है, HTML या XHTML, ये एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे जो है वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, ठीक है जी। तो टेक्स्ट है, ग्राफिक्स हैं, ऑडियोज़ है, वीडियोज़ हैं, ये सारे के सारे वेब डॉक्यूमेंट्स वेब पेजेस में डिस्प्ले होते हैं, ठीक है जी। एंड अ वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब मैंने आपको ICT की जनरल एब्रीवेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज करवाई थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको URL डिटेल में कराया था। URL क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिक एड्रेस है किसका, वेब पेज का, ठीक है जी। क्या हम ढूंढ रहे हैं वो कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, और उस लोकेशन से फेच करके भी हमें जो मिलता है वो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है, बेसिकली software application for retrieving, presenting and transversing information resources on the world wide web। वेब ब्राउजर्स क्या हैं, जिन ब्राउजर्स के थ्रू हम नेट को नेविगेट करते हैं, ब्राउज करते हैं। इट अलाउज टू लोकेट, व्यू, नेविगेट द वेब। सर्व करते हैं, इंटरनेट सर्व करते हैं, ठीक है जी। वेब को नेविगेट करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, वेब ब्राउजर के थ्रू करते हैं, ठीक है जी। इट कैन हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, graphical user interface, meaning they can display pictures, graphics in addition to text and other forms of multimedia such as sounds, videos like Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome and Opera can be text based like Linux and links। कहने का मतलब है, इन्होंने एग्जाम्पल्स ली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोजिला, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे क्या है, ये वेब ब्राउजर्स हैं, जिससे हमें क्या है, इंटरनेट पे कुछ भी हमें मिल जाता है। कौन ब्राउज करके देता है, कौन ढूंढ के देता है, वेब ब्राउजर ढूंढ के देता है। फर्स्ट वेब ब्राउजर जो है वो 1991 में डेवलप किया था, एंड मोज़ैक डेवलप बाय मार्क एंड्रीसन। मतलब सबसे पहला जो वेब ब्राउजर है उसका नाम क्या था, मोज़ैक। याद रखिएगा ये सारी हिस्ट्रीज। मोज़ैक डेवलप हुआ था 1991 में, और ये किसने डेवलप किया था, मार्क एंड्रीसन ने, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए एग्जांपल मैंने आपको ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, वेब ब्राउजर्स डिफरेंट आप देख रहे हैं, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा मिनी, नेटस्केप नेविगेटर, ये सारे क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर द लाइव वेब ब्राउजर्स थ्रू विच वी आर सर्फिंग एंड ब्राउजिंग और नेविगेटिंग द इंटरनेट। अगर ये वेब ब्राउजर्स ना हो तो हम कुछ भी सर्च नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नेविगेट नहीं कर पाएंगे, ब्राउज नहीं कर पाएंगे, कुछ भी ढूंढ नहीं पाएंगे, कुछ भी हम फाउंड नहीं कर पाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले भी बताया क्या है, रूल्स रेगुलेशन, सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है, वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, अब स्कूल को चलाने के लिए ऐसे थोड़ा सा चलता है, स्कूल को चलाने के लिए क्या चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ठीक है, सारा कुछ चाहिए। वैसे ही इंटरनेट को चलाने के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, गाइडलाइंस होती हैं, उससे जो है इंटरनेट जो है वो वर्क करता है, चलता है, ठीक है जी। अब ये फॉर्मेट्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कौन कौन से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
ठीक है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी नेटवर्क न्यूज़ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एनएनटीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी नॉर्मली वी यूज टुगेदर विद द आईपी दैट इज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये सारे ही मैंने आपको एग्जांपल जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स है। कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फाइल वाले हैं, फाइल्स को मैनेज करते हैं, इंटरनेट की फाइल्स को, जैसे एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, हर एक डोमेन के अलग अलग प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। कुछ मेल्स को मैनेज करते हैं, मेल्स ईमेल्स को गवर्न और मैनेज करते हैं, वो कौन से हैं, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कुछ जो है वो टोटली इंटरनेट को जो है पूरे इंटरनेट को जो है वो कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं, वो है एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो है इनका हमने थोड़ा सा आपको बताया है। और कुछ जैसे HTTP बहुत इंपॉर्टेंट है, HTTP बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोटोकॉल में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर्वर प्रोटोकॉल यूज टू एक्सचेंज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कॉल दी HTTP। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट के ऊपर हम जो है शेयर करते हैं उनको जो है ये गवर्न करता है, मैनेज करता है। मेन थिंग यू नीड टू नो इज दी HTTP इज अ लैंग्वेज स्पोकन बिटवीन योर वेब ब्राउजर एंड अ वेब सर्वर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज फाइल्स। ठीक है जी, तो अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज दी मार्कअप लैंग्वेज फैमिली की वन ऑफ द मेन जो है वो लैंग्वेज है, जिससे क्या होता है आपकी जो वेब पेजेस या वेबसाइट्स डिज़ाइन होती हैं जिन लैंग्वेजेस को यूज़ करके, उस लैंग्वेजेस की फैमिली का सबसे मेन लैंग्वेज क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या है, used on the internet and the world wide web. Web page developer puts brief codes called tags in the पेज टू इंडिकेट हाउ द पेज शुड बी फॉर्मेटेड। अब पेज को बनाना, वेब पेजेस को डिज़ाइन करना, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना उस लैंग्वेज में। ठीक है जी, कौन सी लैंग्वेज में, HTML। ये क्वेश्चन भी आया था कि वेब पेजेस और वेबसाइट्स कौन सी लैंग्वेज में डेवलप होती हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा HTML लैंग्वेज में डेवलप होती हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। यहाँ पे कोड्स दिए जाते हैं जिन कोड्स के द्वारा जो है वो डेवलप की जाती हैं। ठीक है जी, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब पेजेस। HTML commands your web browser to display text and graphics in a specific fashion. Beginning internet users don't need to know HTML coding to enjoy the web pages. The programming हमें नहीं पता कि हम तो वेबसाइट खोल लेते हैं, वेब पेज जो है वो सर्व कर लेते हैं, उससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, लेकिन ये वेबसाइट्स बनी होती हैं ये किस में बनी होती है, इसी लैंग्वेज में बनी होती है। इस लैंग्वेज की बेसिकली नॉलेज हमें एज अ लेमैन नहीं होती है, किसको होती है, जो ये प्रोग्रामर्स होते हैं बड़े बड़े, जो बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी, इस कोडिंग के अंदर। ठीक है जी, XML मैंने आपको कल जो आपको एब्रीवेशंस और जर्नल टर्मिनोलॉजीज ICT कराई थी, उसमें XML मैंने आपको बताया था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, कज़न टू HTML। इस मतलब HTML की ही जो है वो आप कज़न कह लो, सिबलिंग कह लो, जो मर्जी कह लो। XML फोकसेस ऑन कैटलॉगिंग एंड डाटाबेसिंग द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। XTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड XML। यस, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टू लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर में कि HTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट टू लैंग्वेजेस। तो कौन सी है, HTML प्लस XML। ये सारी ही लैंग्वेजेस जो फैमिली है मैंने आपको बताया, HTML, XHTML, XML। ठीक है जी, ये सारी किसको डिज़ाइन करने की बनाई हुई हैं, किनको, यस, वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया, ये भी ठीक है जी, कवर हो गया ये भी आपका प्रोटोकॉल्स। उसमें HTTP आपको बता दिया, HTML जो आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये पूछिए कि कहाँ यूज़ नहीं होता है, सब तरफ यूज़ होता है। डाउनलोडिंग प्रोग्राम्स, फाइल्स, ईमेल्स में, वॉइस में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ई-कॉमर्स, फाइल शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन ब्राउजिंग, कुछ भी आपने वेब पे जाके कोई एड्रेस सर्च करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, चैट करनी है, एंड अ लॉट मोर इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ टुडे वी ऑल आर यूजिंग द इंटरनेट। व्हाई नॉट, वी ऑल आर यूजिंग द इंटरनेट। तो ये हमारे लिए
एक वरदान की तरह है, लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी एडवांटेजेस पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इंटरनेट, हम फटाफट से क्विक एंड साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन हो जाती है, फटाफट से मैसेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। रिसर्च वर्क में आईसीटी इन रिसर्च जो मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड फुल फ्लेज टॉपिक कराया है यूजीसी पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड। मैंने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कराए हैं इस चैनल पे, 1 अप्रैल 2020 से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, और अब तक मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड फुल फ्लेज करवा दिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड फुल फ्लेज करवा दिया है, कम्युनिकेशन फुल फ्लेज करवा दिया है, और चौथा ये जो है ये सीक्वेंस में आईसीटी का टॉपिक फुल फ्लेज चल रहा है। कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। वहाँ पे हमने क्या किया था, आईसीटी इन रिसर्च, कि आईसीटी का रिसर्च में क्या योगदान है, पूरी की पूरी एक वीडियो उसमें मैंने आप बना के दी थी आपको, तो वहाँ से आप ज़रूर पढ़िएगा। और थोड़ा सा हम इसमें इंटरव्यू लेते हैं कि रिसर्च में मतलब कुछ भी हमने ढूंढना है रिसर्च की, जैसे ई शोध गंगा, शोध सिंधु सर्वर्स बने हुए हैं, ई जर्नल्स बने हुए हैं, ई रिसर्च साइट्स बनी हुई हैं, वो किस में आईसीटी में बनी हुई है ना, तो रिसर्च के लिए सारा का सारा मटेरियल, लिटरेचर रिव्यू, कुछ भी हम जो है वो ढूंढ सकते हैं आईसीटी के थ्रू। एजुकेशन ऑब्वियसली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है आईसीटी ने इतना ज़्यादा जो है इजीली और कन्वीनियंट बना दिया है कि आप पूछो मत। मतलब हर एक लेसन प्लान हम बना रहे हैं, प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, मैनुअल कम और क्या है नेट के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर ज़्यादा बना रहे हैं कब, और स्टूडेंट्स भी उनको देखकर जो है वो ज़्यादा लर्निंग उनकी स्ट्रांग होती है, रिटेनमेंट जो भी वो कंटेंट पढ़ रहे हैं आईसीटी के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो ज़्यादा जो है उनको रिटेन रहता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑब्वियसली आजकल हर एक डेबिट क्रेडिट कार्ड, हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो इंटरनेट के थ्रू होती है। इवन की टिकट्स बुक करा लो ऑनलाइन, और कोई भी एयर टिकट्स हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की बस टिकट्स हैं, ठीक है, रेलवे टिकट्स हैं, पैन कार्ड बनवा लो ऑनलाइन, कोई भी लाइसेंस अप्लाई कर लो, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नाउ ऑनलाइन। ठीक है जी, आजकल ज़्यादातर क्या है ऑनलाइन हम जो है हर एक चीज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, और ये डिजिटल इंडिया कैसे बन रहा है, इसी तरह से तो डिजिटल इंडिया बन रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या, फॉर अपडेट्स, कोई भी हमने नई जानकारी, हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट जो है वो इंटरनेट से हमें फटाफट से एक क्लिक में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं हर एक चीज़ में। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की थेफ्ट, चोरी हो जाती है इंटरनेट पे। कई बार हैकर्स होते हैं, वो इंटरनेट पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को या तो चुरा लेते हैं, या कई बार होता है ना हमारी जो है फेक आईडी किसी और ने क्रिएट की होती है हमारे नाम से, तो ये सब चीज़ चलती रहती है इंटरनेट पे। स्पैम क्या होती है, जो स्पैम्स होते हैं आपके, मैंने आपको ये कराया भी था, ये मैंने आपको कंप्यूटर बेसिक्स की जो मैं 4 वीडियोस लेके आई थी, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्यूटर बेसिक्स के, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, उसमें मैंने आपको प्रॉपर करवाया था थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। उसमें मैंने आपको मालवेयर, स्पैमिंग एंड सो बहुत कुछ, स्पूफिंग, ये सारा कुछ करवाया था, फिशिंग, है ना, आपको याद होगा। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एक एक वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। अगर मिस करेंगे तो ऑब्वियसली 2 और 4 मार्क्स का आपका छूट जाएगा। ठीक है जी, सो स्पैमिंग भी आप देखिए, ये भी एक डिसएडवांटेज है, मालवेयर थ्रेट्स है, सोशल आइसोलेशन है, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का थेफ्ट हो जाना है, बैंकिंग है, सोशल नेटवर्किंग है, हमारी डिफरेंट हमारे फेसबुक अकाउंट्स बने होते हैं सारी की सारी क्या है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की चोरी हो जाती है, हैकर्स जो है वो चोरी कर लेते हैं, और इसको हम साइबर क्राइम भी बोलते हैं, फिशिंग भी बोलते हैं। तो ये भी डिसएडवांटेज है पहला। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या था, स्पैमिंग। फिर तीसरा क्या है, मालवेयर। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्पैमिंग क्या है, स्पैमिंग रेफर्स टू द स्पेंडिंग अनवांटेड ईमेल्स, जो हमारे, आपको पता, आप जब अपनी आपके सबकी ईमेल आईडीज बने होते हैं, ठीक है, तो इनबॉक्स है, सेंट आइटम्स है, स्पैम्स होते हैं। स्पैम जो चीज़ इनबॉक्स में नहीं आ रही वो कुछ अनसॉलिसिटेटेड या फिर अब्यूजिंग या फिर बिल्कुल अनवांटेड सी मेल्स जो है वो स्पैम में आके जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं। तो स्पैम क्या है, ये भी एक जो है डिसएडवांटेज है, बिकॉज स्पैम में ऐसी सी चीज़ें जो है, कई बार गलत चीज़ें भी आ जाती हैं, कई बार जो है ऐसी कुकीज़ एंटर कर जाती हैं कंप्यूटर के अंदर, या स्पैम की जो हम ईमेल खोलते हैं जो स्पैम में होती है वो खोलते हैं, उसमें से हमारा पर्सनल एड्रेस या कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चोरी हो सकती है। तो इस तरह से स्पैमिंग भी क्या है, इनको हम जंक मेल्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ स्पैम या स्पैमिंग, दिस इज़ द ई जंक मेल्स। तो ये भी क्या है,
थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट क्या है, मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैंने आपको कराया भी था। आपने कंप्यूटर बेसिक्स की 4 पार्ट्स देखने हैं, 4 वीडियोस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसमें मैंने फुल फ्लेज करवाया है मालवेयर का टॉपिक। ठीक है जी, वायरस हैं, ट्रोजन्स हैं एंड सारा कुछ मैंने उसमें कराया हुआ है। ठीक है जी, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये भी हमारे कंप्यूटर के अंदर या इंटरनेट के अंदर घुस के जो है ये क्या करते हैं, हैकर्स की तरह जो है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है चुरा लेते हैं और क्या है, अनऑथराइज्ड वे से जो है हमारा सारा डाटा जो है वो चोरी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये भी डिसएडवांटेज है। और क्या है, आइसोलेशन, मतलब अगर हम इंटरनेट पे जो ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं वो आइसोलेशन में रहते हैं, अपनी फैमिली से कम बात करते हैं, पेयर ग्रुप्स में कम जाते हैं, फ्रेंड्स कम होते हैं, लेकिन क्या है, इंटरनेट पर सारा दिन बैठे रहते हैं, ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ, डिप्रेशन, एनजाइटी, क्योंकि इंटरनेट इज़ बिकॉज एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो ये हमारे लिए हेल्थ के लिए भी बहुत ही गंदा है। तो नेक्स्ट ये यहाँ पे हमारा इंटरनेट जो है फुल फ्लेज खत्म हो गया बेसिकली, मतलब उसके बेसिक्स खत्म हुए हैं। लेकिन पार्ट 2 में जब कल वीडियो लेके आऊँगी तो इंटरनेट की डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लेके आऊँगी जहाँ से प्रॉपर क्वेश्चन आते होते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक आपको जो आपका सिलेबस है उसमें क्या था कि इंटरनेट का बेसिक्स, इंट्रानेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, इंटरनल कंपनी नेटवर्क। एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कॉरपोरेशन का इंटरनल नेटवर्क जो है उसको इंट्रानेट बोलते हैं। एक्सेस्ड ओनली बाय द ऑथराइज्ड पर्सन्स एंड स्पेशली मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जो एक कंपनी का फुल फ्लेज नेटवर्क होता है, जो उसी कंपनी के एम्प्लॉयज़, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसी कंपनी के ऑथराइज्ड पर्सन्स यूज़ कर सकते हैं विद इन अ कंपनी, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रानेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 तरह की सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है इंट्रानेट पे 2 तरह की सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। 2 लेवल्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे, कैन बी इम्पोज बाय पब्लिक की सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन की। आपने सुना होगा डिजिटल सिग्नेचर्स, ई सिग्नेचर्स इनक्रिप्टेड होते हैं। ठीक है जी, जो भी हमारी ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन होती हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, कॉन्फिडेंशियल लेटर्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं हमारी कंपनी के अंदर, उनके नीचे क्या है, इनक्रिप्शंस या इनक्रिप्टेड कीज़ होती हैं, ई डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, ताकि वो ऑथराइज जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहें। इसीलिए इंटरनली हम वो वैसे कर सकते हैं उनको सिक्योर करने के लिए। एक्सटर्नली हमें क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा या थ्रू फायरवॉल जो है वो फायरवॉल इंटरफेस जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब फायरवॉल होता क्या है, एक्सटर्नली हम जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंट्रानेट की कैसे मेंटेन कर सकते हैं, फायरवॉल्स के थ्रू। सिक्योरिटी डिवाइसेस लोकेटेड बिटवीन द फर्म्स इंटरनल नेटवर्क दैट इज इंट्रानेट एंड एक्सटर्नल नेटवर्क दैट इज इंटरनेट। एक फायरवॉल है, एक तरह की दीवार होती है जो कंपनी के इंटरनल सॉफ्टवेयर में जो भी कॉन्फिडेंशियलिटीज़ हैं वो बाहर के नेटवर्क में या बाहर के इंटरनेट में जो है वो शेयर नहीं होती हैं। एक फ्रीज लग जाता है, एक की लग जाती है, एक वॉल वहाँ पे जो है, एक गेट लग जाता है। उस गेट को या उस की को या उस दीवार को क्या बोलते हैं, फायरवॉल। जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स या कंपनी की कॉन्फिडेंशियल जो एक्सेस है वो कंपनी के मेंबर्स तक ही सीमित रहती है, वो बाहर के नेटवर्क में शेयर नहीं कर सकते हम। सो ये क्या है, एक्सटर्नल जो है सिक्योरिटी मेंटेन हो जाती है। सो यहाँ पे इसको बार बार हमें अपग्रेड करना पड़ता है, फायरवॉल नेटवर्क को बार बार अपग्रेड करना पड़ता है टाइम टू टाइम, सो दैट सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं बार बार क्रिएट ना हो जाए। रेगुलेट्स एक्सेस इनटू एंड आउट ऑफ द कंपनीज नेटवर्क बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स। तो ये एक रूल रेगुलेशंस पे चलता है फायरवॉल। और इंटरनेट कहाँ अप्लाई होता है, कंपनी की पॉलिसीज रूल्स को शेयर करने में, एम्प्लॉय डाटाबेसेस को एक्सेस करने में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर्स, एक्सेस प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर डाटा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, लॉन्चिंग ऑफ डिपार्टमेंट होम पेजेस, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, कॉर्पोरेट टेलीफोन डायरेक्टरीज। ये सारा कुछ जो भी कंपनी के अंदर जो भी एक्सेस हो रहा है, जो भी बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, शेयर हो रहा है, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है। और यहाँ पे ही इंट्रानेट की एप्लीकेशन जो है वो होती है कंपनी के विद इन। ठीक है जी, और यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंट्रानेट के, कि ये इंटरनेट का जो कनेक्शन है या इंटरनेट का इंटरफेस मेंटेन करना या गवर्न करना बड़ा ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लिमिटेड बैंडविड्थ फॉर द बिजनेस, बिकॉज इसका जो बैंडविड्थ है
कि जिस बैंडविड्थ होता है का मतलब कितनी विड्थ या कितने डाटा पैकेजेस जो हैं वो हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी, विद इन अ कंपनी। तो उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। कई बार क्या है, कंपनी का डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन बैंडविड्थ इतनी नहीं है कि वो सपोर्ट कर पाए, तो ये भी एक इशू हो जाता है। डिसएडवांटेज इंटरनेट का हो जाता है बिकॉज उसका एक लिमिटेड जो है वो एरिया रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस, अनऑथोराइज एक्सेस, कई बार क्या है इंटरनल कंपनी में भी अनऑथोराइज एक्सेस हो जाता है, या कोई ऐसा एम्प्लॉय जो है वो गलत जो है कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी को भंग कर सकता है। कुछ भी ऐसे डिसएडवांटेजेस जो है इंट्रानेट के हो सकते हैं। एंड productivity problem, information overload lowers productivity. True purpose of internet is unknown to many employees or departments, hidden or unknown complexity and cost. इसको इंस्टॉल करने की, इसको मेंटेन करने की, इंट्रानेट को मेंटेन करने की, इंस्टॉल करने की कॉस्ट बहुत हाई होती है बिकॉज ये प्राइवेट नेटवर्क है। इसको मतलब इंस्टॉल करना, मेंटेन करना, रिटेन करना बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही जो है वो थोड़ा सा कम्बरजम या कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है जी। इस तरह से इसकी प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कई बार कनेक्शन जो है ओवरलोड हो जाता है, तो ये सारे इश्यूज रहते हैं इंट्रानेट के साथ। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रानेट, जो आज का लास्ट टॉपिक है एक्स्ट्रानेट। क्या होता है एक्स्ट्रानेट? आपने इंटरनेट पूरा पढ़ लिया, इंट्रानेट पढ़ लिया, अब आप एक्स्ट्रानेट पढ़ोगे। Extranet is an internet for outside authorized users using the same internet technology. कहने का मतलब है जब कंपनी का खुद का जो इंट्रानेट है, जो कंपनी का खुद का प्राइवेट नेटवर्क है, इंट्रानेट है, जब उसका लॉगिन पासवर्ड या आईडी दूसरे आउटसाइडर्स के साथ हम शेयर कर देते हैं, ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट को शेयर कर देना दूसरे आउटसाइडर्स के साथ, ठीक है, जो हमारे कनेक्शन में है, लेकिन वो कंपनी के बीच में काम नहीं करते, कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, लेकिन वो आउटसाइडर्स हैं, हम अपना कनेक्शन किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, इंट्रानेट से क्या बन जाता है, एक्स्ट्रानेट बन जाता है। So, inter-organizational information system enable outsiders to work together with companies employees. कंपनी एम्प्लॉय के साथ साथ जो आउटसाइडर्स हैं उनको अटैच कर देते हैं, ठीक है जी, बिकॉज हम अपना ही नेटवर्क शेयर कर रहे हैं आउटसाइडर्स के साथ, उनको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड्स दे रहे हैं ताकि वो जो भी हम उनको मतलब हम अपनी जो एक्सेस है उनको दे सकें, तो वो क्या है, एक्स्ट्रानेट बन जाता है। ओपन टू सिलेक्टेड सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स। किसको देते हैं अपना इंटरनेट कनेक्शन, जो हमें लगता है कि ये हमारे साथ वैसे तो एम्प्लॉयज़ नहीं कंपनी के, लेकिन वो कंपनी के साथ कहीं ना कहीं मतलब आउटसाइड से जुड़े हुए हैं, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, है ना, बिजनेस पार्टनर्स हो गए। अब एक्स्ट्रानेट का एग्जांपल बहुत बढ़िया मैं लेके आई हूँ, स्क्रीन के ऊपर देखिए। डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हैव टू एक्सेस टू प्रोडक्ट फाइल सच एज। अब हमारे जो कंपनी के डीलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं लेकिन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम क्या कर देते हैं, कंपनी का शेयरिंग जो है या जो है कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस करने की अथॉरिटी दे देते हैं, तो एक्स्ट्रानेट बन जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, पिक्चर्स, इमेजेस एंड इन्फॉर्मेशन टू आंसर कस्टमर क्वेरीज, ये सारी कुछ ये जो कॉमन इन्फॉर्मेशन हैं वो उनको भी एक्सेस करने के लिए दे देते हैं, ठीक है जी। व्हेन वी शेयर our private network or intranet with the outsiders by sharing our login ID password, so this is called the extranet, ठीक है जी। बेनिफिट्स क्या हैं, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, लोअर ट्रेवल कॉस्ट, लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ओवरहेड कॉस्ट, रिड्यूस पेपर वर्क, डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, बेटर कम्युनिकेशन, ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस इफेक्टिवनेस। मतलब अगर एक्स्ट्रानेट है तो ज़्यादा जो है लोड नहीं पड़ता, हम शेयर कर रहे हैं, हम काम शेयरिंग बेसिस पे कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छी हो जाती है, ओवरहेड कॉस्ट जो है कम हो जाती है, पेपर वर्क कम हो जाता है। ये सारे एडवांटेजेस हैं किसके, एक्स्ट्रानेट के। लेकिन हर किसी के दो पहलू होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सप्लायर्स एंड कस्टमर्स डू नॉट हैव टेक्निकल नॉलेज, उनको ये कई बार नहीं पता होता कि कैसे ऑपरेट करना है, उनसे नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस उनसे वो किसी और को अगर शेयर हो गया तो वो अनऑथोराइज शेयरिंग हो जाती है, ठीक है जी। सो फेसलेस कॉन्टैक्ट, ठीक है, फ्रॉड में भी पॉसिबल। अब ये नहीं पता कितने डीलर्स होते हैं, कितने ही कस्टमर्स होते हैं, तो हमें नहीं पता कौन कौन उसको यूज़ कर रहा है। हम कस्टमर्स को अगर उसका ऑथराइजेशन देते हैं तो वो किसी और को भी दे सकते हैं, तो ये फेसलेस कॉन्टैक्ट, यहाँ पे फ्रॉड या फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो हो सकती हैं, उनके होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा चांसेस हैं। टेक्निकल एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन कैन बी मिस यूज बाय अदर कॉम्पिटिटर्स, तो इस तरह से कॉम्पिटिशन में भी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे लास्ट में आप देखिए, आपने तीनों कंसेप्ट किए, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। तो
तो इंट्रानेट सबसे छोटा डोमेन है, उससे बड़ा क्या डोमेन है इंटरनेट। इंट्रानेट क्या है, कॉर्पोरेट मेंबर्स मींस विद इन अ कंपनी। जो एक्स्ट्रानेट है वो है क्लाइंट्स, पार्टनर्स और कस्टमर्स या डीलर्स को हमने साथ में जोड़ लिया, तो वो ज़्यादा बड़ा बन गया इंट्रानेट से। इंट्रानेट से एक्स्ट्रानेट बड़ा हो गया, और एक्स्ट्रानेट से भी कौन बड़ा हो गया, इंटरनेट हो गया, जो ग्लोबलाइज्ड है, ग्लोबल सोसाइटी से और कंप्यूटर सबसे जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो ये डोमेन को याद रखिए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, सीक्वेंस में लगाइए इंटरनेट को, इंट्रानेट को और एक्स्ट्रानेट को। तो 4 तरह के जम्बल्ड सीक्वेंस आए हुए थे, तो अब जिसको पता नहीं है तो वो गलत भी कर सकता है। ठीक है ना। तो सबसे छोटा क्या है, इंट्रानेट, उससे बड़ा एक्स्ट्रानेट, उससे बड़ा इंटरनेट, राइट। तो आज की प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, शेयर करिए इस चैनल को। ठीक है जी, और बेल आइकन दबाइए ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस जो हमारे न्यू वीडियोस आएँ उनकी साथ ही आपको जानकारी और नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ठीक है जी। तो ये सोशल चैनल है, जितना फैला सकते हैं इनको, जितना फ्लरिश कर सकते हैं प्लीज़ करिए, क्योंकि आपने कुछ नहीं करना। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, जस्ट वी वांट योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारे मोटिवेशन लेवल बढ़े और हम जो है और भी आगे इम्प्रूव्ड वे से नई नई वीडियोस लेके आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड कर सके। सो थैंक यू फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Bye bye for now, all the students.